And well, there is no end to monsoon woes for people of Delhi NCR. With the continuous rainfall, Yamuna River has crossed the danger mark. Government has sounded a flood alert. Evacuations are in low-lying areas that are underway. Schools in Noida and Ghaziabad are shut as a precautionary measure. Disaster management teams have been deployed as Delhi government sounds flood alert in the national capital. Evacuations have begun in low-lying colonies. Families are being shifted to safer ground and relief camps. Traffic police are issuing advisories as waterlogging worsens in several pockets. For Delhiites, this brings back haunting memories of July 2023 when the Yamuna had swelled to 208.66 meters, the highest level ever recorded in 70 years. Today, the Yamuna water levels stand at 206.36 meters. The city is on the edge again. What's adding to the crisis? Massive discharges from Hathni Kund, Wazirabad and Okhla barrages. At Hathni Kund alone, more than 1.7 lakh cusecs of water that has been released in the last 24 hours. All of it is now rushing downstream into Delhi. This is the Yamuna Bazar area, which is in fact one of the worst affected areas in the national capital right now. A team of the NDRF is on standby to see if things get worse and if they need to step in and then help the people living in this area who've anyway been dislocated. Arrangements being made just in case the water then comes to the road. These sacks of sand would help them reduce the impact of the flow of the water. Washrooms have been set up, temporary setups like this for the people living in this area who have been completely displaced. Also, what you can see right now is that these temporary shelters have been set up. The people living here, they live in the Yamuna Bazar embankment, and right now they are living in these temporary shelters that have been set up by the Delhi government. And this is what the government is doing to help the people, but it continues in fact to maintain that the problem is that a lot of people are living in these areas and they should not be living there, and warnings have been issued not one but several times. Remember, the government has said clearly that these are encroachments. The water hasn't entered the houses of people. The people are living where the water is usually naturally flowing. With video journalist Sanjay Kumar, Sneha Mordani in New Delhi for India Today TV. This is a key piece of infrastructure in Delhi's flood management. This is the ITO barrage, a total of 32 gates which have been thrown open to manage the flood situation right now. It's interesting to note that this is physically in Delhi but is otherwise managed by the Haryana government as per a pact. Haryana government manages this barrage. The Delhi government, of course, is keen to bring it under its control given its important role in controlling the flood situation in Delhi. As of now, the 32 gates, like I said, have been opened up. But last time around, because of the malfunctioning of the gates of the ITO barrage, these gates could not open up, which led to an unprecedented flood situation in the national capital. That was 2023. This is 2025, and that's the reason why the Delhi government hopes that by opening up the floodgates, they're going to manage and regulate the water flow into the national capital, and that is how they are going to control the flood situation in Delhi, trying to bring things under control and minimizing the damage here. These are the buildings usually also used for residents as well as, the Aarti and Puja. But right now, the life is at halt. People had to vacate their homes. Many of these people had, tried to maintain calm and stay back at their homes, hoping that the ferocity of Yamuna, the intensity of Yamuna would reduce. That's a local temple out here that's completely submerged, as you see, and the adjoining houses are also closed right now because there was no option or hope left to be living inside. Those who had multiple floors upstairs, many of them are living on the other lanes of Yamuna Ghat. They are living upstairs, but right now what the best was possible is to keep the important materials of the house. They have stored it upstairs on the roof. सुबह कितने बजे से पानी इतना अंदर आ गया? ये तो 2 बजे रात से ही है। 2 बजे रात से, कल रात 2 बजे। हाँ जी।
तो अभी लोगों को आने जाने के लिए आप लोग रोक लगाए होंगे? हाँ, अभी रोक लगाए हैं। कोई भी व्यक्ति आने जाने, जैसे यहाँ के थाना परिवार ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार हम लोगों को किसी को इससे आने जाने नहीं देना है। ठीक है। और आगे हमने देखा है कि रास्ते पे भी आप लोगों ने बैरिकेडिंग करवा दी। बैरिकेडिंग कर दिया है कि कोई गाड़ी वगैरह लेके इधर से ना जा सके। हाँ। और कोई मानव भी नहीं जा सकते हैं इधर से, ताकि खतरा है सांप बिच्छू और पानी का। ठीक है। और कितने सालों बाद इतना लेवल तक पानी आ गया? 88 में आया था, उसके बाद 23 में आया था, उसके बाद आया है। ये 23 के बाद पहली बार दिख रही है। इतना रास्ते तक तो कभी नहीं आता। नहीं, 23 में आया था और अब भी है। 23 में भी है। Okay, so what you clearly heard from him, he is a security guard in this region, and this is clearly the visuals over here. Since yesterday late night 2 a.m. the waters have reached the roads almost. This is the Wazirabad cremation ground region as we talk, and it's been made out of bounds now. For the people, with barricades being put across the road as well, and clearly you cannot go inside because the water levels have now breached and reached the roads. With video journalist Nasir, this is Shreya Chatterjee for India Today. दिल्ली के मोनेस्ट्री इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से इस पूरी कॉलोनी के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी घर हैं, वो इस वक्त पानी से लबालब है। घुटनों से ज़्यादा पानी इस वक्त जो है वो आपको नज़र आएगा। जहां आप देखेंगे, नज़र डालेंगे, वहां आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। लेकिन प्रशासन की लापरवाही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस पूरे इलाके में जो है पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी भी इस इलाके की जो बिजली है वो फिलहाल जो है वो काटी नहीं गई है। खतरा जो है वो किस कदर से जो है वो यहाँ पर लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है बिजली विभाग की तरफ से। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से बिजली के मीटर में आपको इस वक्त जो है वो लाइट जो है वो जलती हुई नजर आएंगी। यानी सीधे तौर पर इस पूरे इलाके में जो बिजली कट जानी चाहिए थी अब तक नहीं कटी है। ये तमाम लोगों की जान जो है वो इस वक्त जो है वो जोखिम में जो है वो डली हुई है। और कि ये तस्वीरें, और यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त 206.80 पर पहुंच गया है। और ये यमुना बाजार के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे घर जो है वो इस वक्त एक एक मंजिल तक जो है वो पूरी तरह से डूब गए हैं। बाकायदा यहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो बोट के जरिए अपने घरों से और जो बचा कुचा सामान है वो निकाल रहे हैं। लेकिन आपको मैं तस्वीरें ये भी दिखा दूं कि अब से अगर थोड़ी देर बाद जल स्तर और तेजी के साथ बढ़ता है और अगर ये क्रॉस करता है 207 मीटर तक पहुंचता है तो ये पानी जो है वो रिंग रोड तक भी पहुंच सकता है। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, यही वो दीवार है। अगर ये दीवार तक पानी क्रॉस होता है तो पानी रिंग रोड तक आने की उम्मीद है। लोकल रेजिडेंट्स हैं, आप देखेंगे किस तरीके से दीवार पर टकटकी लगा करके बैठे हैं कि पानी कहीं ऊपर ना आ जाए। यहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो किस तरीके से पूरी कॉलोनी के अंदर जो है वो बोट के जरिए इधर से उधर जो है वो मूव कर रहे हैं, ताकि अगर कोई लोग छतों पर हो उनको बाहर जो है वो निकाला जा सके। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो काफी हद तक ये पूरा हिस्सा जो है वो पानी से लबालब है। और इसी तरीके की स्थिति अगर कमोवेश पानी और बढ़ता है तो स्थिति आगे भी जो है वो खराब होने की आशंका है। और अगर रोड तक पानी आता है तो लोगों के लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। यमुना का जलस्तर अब 206.8 मीटर तक पहुंच गया है। और यही नहीं, अनुमान है कि अभी कुछ घंटों में यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा, यानी करीब 10 से 12 सेंटीमीटर और बढ़ेगा। और ये सब डिपेंड करता है कि पीछे से पानी कितना छोड़ा जाता है, हथनीकुंड बैराज से, वजीराबाद बैराज से कितना पानी छोड़ा जाता है, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे की स्थिति क्या होगी। दिल्ली सरकार की पूरी तरीके से नजर है। दिल्ली सरकार ने आसपास के राज्यों से बात लगातार कर रही है। ये जो पानी है ये दिल्ली की सड़कों तक ना पहुंचे, उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। उसके पहले ही जो लोग यमुना बेल्ट पे रहते थे उन्हें यहां से हटा दिया गया है। उन सब के लिए अस्थायी कैंप बनाए गए थे, उन कैंपों में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। यमुना बाजार का इलाका हो चाहे मोनेस्ट्री हो, इन सभी जगहों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। लोगों ने अपनी दुकानों को, घरों को खाली कर दिया है। लेकिन आप ये बहाव देखिए, इस बहाव को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना में इस वक्त कितना पानी है। सरकार की नजर है, लगातार बातचीत जारी है और कोशिश है कि 2023 में जो स्थिति थी वो स्थिति न बने। इसके लिए रिंग रोड पर पानी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। टेंट मिल गया, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब सुविधा मिल रही है। कोई भी इंतजाम नहीं है दवाई ववाई का, सिर्फ टेंट लगा दिया और बस, और कोई इंतजाम नहीं है। न दवाई का है, न पानी का है, न बिजली का। पूरी रात मच्छरों ने यहाँ पे खा रहे हैं। बाहर 2023 में भी आई थी, सब चीजें थी बिल्कुल। सारी सुविधा रात को ही हो गई थी। कब?
जो 2023 में बाढ़ आई थी। टेंट तो लग गई थी, पर खाने की पीने की जैसे डांगा डोर है हमारे, किसी की कोई सुविधा नहीं मिली हमें। अब पिछले साल बहुत बढ़िया सुविधा थी, ये केजरीवाल ने 10-15 हजार रुपए इनको दे भी दिए थे खेत वालों को। हमें जैसे हम ठेके पे लेके बोते हैं जमीन, तो सबको दिए थे तकरीबन, उन्होंने जिसके खेत डूब गए थे। सारा कुछ भी इंतजाम नहीं है, सारा भीग गया, सब बेकार होगा। अट्टा वट्टे में पानी भर गया, भूखे बैठे रात तक भूखे प्यास से, कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी इंतजाम नहीं है। हाँ, चूँकि जैसे कि मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है कि काफ़ी समय से ये लगातार वर्षा हो रही है, इस कारण जो नदी के आसपास के जो निचले स्थान है जहाँ पे लोग निवास करते हैं, तो इस संबंध में अलर्ट जारी हुआ है। तो हमारे द्वारा भी सभी थानों की पुलिस द्वारा, चाहे त्यूनी हो, कालसी हो, विकास नगर हो, सहसपुर हो आदि द्वारा इस संबंध में नियमित रूप से चेतावनी दी जा रही है और अलर्ट जारी किया जा रहा है तथा माइकों से और थाने की गाड़ियों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।